मैं विनती कथूरिया एहसास उमंग आगरा की ओर से आप सभी का कलम आगरा की इस कड़ी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कलम हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहित करने का प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक प्रयास है। अपने लोग अपनी भाषा। कोलकाता में स्थित प्रभा खेतान फाउंडेशन सामाजिक, सांस्कृतिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए समर्पित है। ये भारत में सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को लागू करने के लिए देखभाल करने वालों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान विचारधारा वाली संस्थानों के साथ सहयोग करता है। एहसास उमंग आगरा और प्रभा खेतान फाउंडेशन की मीडिया पार्टनर है दैनिक जागरण और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है ITC मुगल। आज की हमारी खास अतिथि हैं हिंदी और अंग्रेजी साहित्य की प्रतिभाशाली लेखिका वर्षा तिवारी जी। 1999 से पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सक्रिय वर्षा जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा साहित्य और लेखन को समर्पित किया है। इन्होंने TBLM, आउट ऑफ प्रिंट, शेनेडोआ, इलेक्ट्रिका, जैगरी लिट जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है। आज हमारे साथ कलम कार्यक्रम में वे अपनी साहित्यिक यात्रा और अनुभवों पर हमसे बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करेगी नताशा गोयल, जिन्हें बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक रहा है। उन्होंने 10 साल पहले रीडिंग जॉइंट नामक एक क्लब की स्थापना की थी, जिसमें वह चाहती हैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से प्रेम करने वाले लोग उनसे जुड़े। तो आइए एक गर्मजोशी से स्वागत करते हैं वर्षा तिवारी और नताशा गोयल जी का। यहाँ पर इस पहली पब्लिश्ड किताब के एक्सर्प्ट्स में पढ़ूंगी और आप सबका यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और विनती और चांदनी और नताशा जी, जो कि अनेक इतनी प्रोग्रेसिव संस्थाओं से जुड़कर एक इस तरह का कार्यक्रम संभव हो पाता है। आप सबके एफर्ट्स की वजह से आज हम सब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत खुशनुमा चीज़ है। और मैं चाहूँगी कि आपको भी उतना ही आनंद मिले जितना मुझे इस किताब का अनुवाद करके मिला। तो ये किताब आशिक मियाँ के बारे में है, तो मैं इसके सेकंड चैप्टर से पढ़ूंगी, जो कि आशिक मियाँ के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। चैप्टर का नाम है अप गोes the shutter and out comes the hero. The shutter goes up at exactly 9:30 every morning. The shutter is inscribed with the words Mr. India Gents Taylor, next to which is a painted picture of a suited, booted Anil Kapoor, the reigning Bollywood hero. Today, that is on 20th September 1990 as well, the shutter goes up at 9:30 AM. The man steps in and the shutter of the adjacent shop too gets lifted up from the inside. This being Savitri Ladies Boutique. Behind the second shutter lies a shiny glass door with a welcome sign, and below it is the injunction, यहाँ शब्दों का खड़ा होना मना है. Loafers, loud scoundrels, not to stand here. Shodo, the word used in the edit, refers to not just any scoundrel, but a smirking, winking, neck-craning embodiment of sleaze only to be found in mohallas like this. Now hear this. Both shops, owned by the same man, with the same wall and veranda, but with two different sets of rules. The day before, Bhola Babu had come here to give measurements for his pajama. The festive season is on, and Mr. India being jam-packed, he had shifted just a bit to the other side. At once, a voice rose to admonish him. Hey you, mind where your feet go. Haven't you read this or what? One step to that side, and our dear retired
Bhola Babu turns from the most respectable man of the Mohalla to Ashoka. Just tell me, who acts like this? Good, bad, decent, characterless, all matters are settled within the span of a single step. This is the philosophy of the owner of Mr. India, Sheikh Nizamuddin Wali Ashik. In short, Ashik Mia. You want to keep the pant length at 40 or 40.5 inches? Ashik asks while measuring a customer. Keep it whatever, yaar. What difference does half an inch make? Think again, bhaiya. The difference of half an inch can turn a man into a Hindu or a Muslim. Aramganj Walas don't want to forget this half-inch difference, and they also don't care to remember two different shop names. Consequently, they have combined the two names, Savitri Ladies Boutique and Mr. India, into one, two-in-one tailors. Just as two-in-one can be a radio as well as a tape recorder, our Ashik Mia can stitch salwar suits and blouses for women with the same facility with which he can make shirt, pant and kurta pajama for men. Mostly our Mohalla people like to say that Ashik might be 2-in-1 as a tailor, but as a man, he is 4-in-1, maybe even more than that. In the entire stretch from Aramganj Chowk to Pahari Tola, from Bada Talab to Main Road, many different stories are heard and known about Ashik Mia. When Ashik Mia flew kites, the sky would get emptied of riders in a matter of minutes. Records for roadside games like marbles and gilli danda are all in his name and will remain in his name because now these games are hardly played. Who knows how many things this man is a master of? Had he not been a tailor, Ashik would have been a wonderful painter. The portrait of Anil Kapoor on his shop shutter is his handiwork. No, he would have been a top mechanic. The company repaired my TV, but after it was fixed, it calmed off again. Who knows what Ashik did after opening the thing, but within 5 minutes it was working again. In this entire town, you won't find another fellow who can drive every vehicle from cycle to truck. Give an airplane to this guy, that too he would fly without any training. So that's a brief introduction. I just thought that before we begin the boring question-answer session, you have a little bit of context of what this book is about. And now I think we can discuss. आप सभी को नमस्कार। हम अनुवाद की दुनिया में चल रहे हैं अभी। अनुवाद हमारे लिए गंभीर पाठक के रूप में हमारी समझ के लिए महत्वपूर्ण है और साक्षर शिक्षित पुरुषों और महिलाओं के रूप में हम अनुवादों की अनुपस्थिति को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए अकल्पनीय पाएंगे। दुनिया में लगभग 6000 मौजूदा भाषाएं हैं। आइए हम एक अनुमान लगाते हैं कि उनमें से लगभग 1000 लिखित हैं। सबसे प्रतिभाशाली भाषाविद भी 1000 भाषाओं में जटिल साहित्यिक ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता। हम उन कुछ लोगों से विस्मित होते हैं जो 10 भाषाओं को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और यह स्पष्ट रूप से एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि यदि अनुवाद नहीं होते तो बहुभाषी प्रतिभाएं भी उन 990 भाषाओं में लिखी गई रचनाओं से वंचित रह जाती हैं जिन्हें वे भी नहीं जानते। यदि यह भाषाई रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए सच है तो कल्पना करें कि अनुवादों के गायब होने का हम बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको वेलकम करती हूँ वर्षा जी को यहाँ पर और मेरे पास कुछ छोटे सरल प्रश्न हैं इनके लिए। हम भी देखते हैं इनकी जर्नी कैसी रही है इस ट्रांसलेशन की दुनिया में और मैं इससे शुरू करती हूँ। वर्षा जी आप हमें बताएंगे आपका बचपन कैसा बीता है और आप अपने रहन सहन एवं परिवेश के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहाँ तक अनुवाद का संबंध है, मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा ही परिवेश नहीं पर
इस कपड़े में जितने भी हम सब लोग हैं हिंदुस्तानी लोग, हम सबका परिवेश भाषाओं के बीच में रहता है। हम बहुभाषिक होते हैं। घर में जो हम बोली सीखते हैं वो कभी खड़ी हिंदी नहीं होती, वो कोई हिंदी की बोली होती है, हो सकता है भोजपुरी हो, बुंदेलखंडी हो, अवधी हो। उस बोली को अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार के फिर स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर हम एक खड़ी भाषा को सीखते हैं, अंग्रेजी बरतना सीखते हैं। और उस रास्ते में 2-4 और भाषाएं, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, कुछ ना कुछ हमारे मन में समाता जाता है। और हिंदुस्तान में रहने की ये एक आवश्यकता है। आप इस देश में अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, तो आपको कम से कम 3-4 भाषाएं बरतनी पड़ेंगी जी। तो मेरा भी परिवेश वैसा ही रहा। मैं हालांकि मेरे पिताजी कलकत्ते में थे और फिर चंडीगढ़ में थे, लेकिन मैं पहले 5 साल मेरी नानी ने मुझे पाला और मेरी जुबान पे बुंदेलखंडी अपने आप ही चढ़ गई। जब मैं चंडीगढ़ में जाती थी तो बुंदेलखंडी मेरी जुबान से उतर जाती थी, पंजाबी चढ़ जाती थी, क्योंकि स्कूल में हम पंजाबी सीखते थे और हिंदी और अंग्रेजी तो सीखते ही थे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हम सब में है। तो ऐसा कुछ मेरे में विरला भी नहीं है, पर साहित्य में रुचि है जो मुझे बचपन से थी, तो शायद इसलिए मैं अनुवाद की ओर मैंने रुक किया। जी मैम। वर्षा जी, ये भी बताएंगे आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य रहा है जिससे प्रेरित होकर आपने लेखन शुरू किया? जी हाँ, जब लेखन तो नहीं, पर मेरी मम्मी हिंदी लिटरेचर में PhD कर रही थी, तब मेरी नानी मुझे पाल रही थी जब, तो हमेशा घर में प्रेमचंद, रेणु और ये सब उपन्यास पढ़े रहते थे। मुझे समझ भी नहीं आते थे, लेकिन मैं बिना समझे ही उनको ऐसी पढ़ती रहती थी, क्योंकि उस जमाने में टीवी वगैरह तो था नहीं 70 के दशक में। तो हम यूं ही किताबें, मतलब अगर कोई लेबल भी मिल जाए तो उसको भी पढ़ने लगते थे, तो वैसे ही पढ़ती थी। उसका कुछ असर होगा। वर्षा जी, ये बताएं, आपने जैसे अपना लेखन 10 वर्ष पहले शुरू किया, तो आपका लेखन का सफर कैसा रहा है? कुछ खट्टी मीठी यादें भी होंगी उन दौरान, तो कुछ हमसे भी साझा करें। देखिए, लेखन मैं समझती हूँ एक दिमागी वर्जिश है। जैसे हम जिस्मानी वर्जिश करते हैं, जिम में जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन 10 किलोमीटर दौड़े या 10 पुशअप्स लगाए और फिर 5 दिन के लिए छोड़ दें और फिर समझें कि जब हम उसे दोबारा से शुरू करेंगे तो हम उसी लेवल पे होंगे। तो मेरी लेखन की जर्नी में सबसे बड़ा सबक मेरे लिए यही रहा है कि एक प्रैक्टिस है। और बहुत मतलब जब हम लेखन शुरू करते हैं या पहली बार कुछ लिखते हैं, तो हमारे दिल में कोई बहुत बड़ी हसरत या पैशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है, फिर वो खत्म हो जाता है और फिर हम लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि ये एक प्रैक्टिस है, तब हम उसको वास्तव में हम कह सकते हैं कि हम लेखक हैं या अनुवादक हैं। और मुझे ये दोनों चीजें बहुत आपस में इंटरकनेक्टेड लगती हैं कि लेखन और अनुवाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो खट्टी मीठी मतलब यही है कि दिस इज द लेसन ऑल्सो एंड दिस इज द रिवॉर्ड ऑल्सो। जी, आप राकेश कायस्थ जी से कैसे संपर्क में आई और आपका अनुभव उनके साथ कैसा रहा? जी, मैं जब भी कोई किताब पढ़ती हूँ और अगर वो मेरे दिल में उतर गई तो मैं अवश्य, आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू कॉम्प्लीमेंट द ऑथर एंड आई राइट एक्सटेंसिव book reviews. Like today also Wire has published and this week Frontline has published my interview with some poet. So I always make it a point to get connected to the author or the poet who really touched my heart. So that is how I got in touch with Rakesh ji and I told him कि ये तो बहुत अच्छी किताब लिखी है, इसको आप जरूर इसका अनुवाद भी करवाइए, इसका सिनेमा भी बनवाइए। क्या बात है। तो बात ऐसी
आई गई हो गई और फिर मैं अपने ये माइक जरा संभाल। हेलो, हाँ। फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बताना चाहती थी कि ये बुक कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मलयाली है मेरी बेस्ट फ्रेंड, सो शी कांट रीड हिंदी, सो आई वुड record text messages so that she could read. Then I thought, let me translate a few bits. So I translated 10 pages and I sent it to her, and I also sent it to the author. So then he said, why don't you translate it? So I said, I never translated, but somehow that's how the process started. Okay. And this was like post second wave or something. So the time was also like this. That people were dying to connect with each other and do something so that the connection is stronger because we felt so disconnected at that time. So so that's how it started. तो जब आपने ये किताब पढ़ी रामभक्त रंगवास, तब आपने जैसे कहा आपको बहुत अच्छी लगी, तो इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे ये लगा क्योंकि मैं अंग्रेजी किताबें भी बहुत पढ़ती हूँ जी, और अंग्रेजी किताब जब हम कोई साहित्य पढ़ते हैं तो जैसे कि प्रेमचंद ने बोला था कि साहित्य का क्या उद्देश्य है। साहित्य का उद्देश्य है कि जो हमारे सामाजिक और पॉलिटिकल रियलिटी है उसका अक्स उतारना। तो मैं अंग्रेजी किताबें भी बहुत पढ़ रही थी, और उस समय 1920 के दौर में मेरे को ऐसी कोई किताब इतनी पावरफुल नहीं लगी जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, इमीडिएट है, उसको इतनी पावरफुली उस ट्रूथ को सामने ला रही है। तो और मैं जितनी हिंदी किताबें पढ़ रही थी इस दौर में, मुझे लगा कि these are far more powerful, immediate, truthful, and they are saying things which our English literature, which is so widely read, is not saying. So that translation becomes the need of God. लेखक एक संस्कृति, एक भाषा और एक परिवेश में लिखता है, परंतु एक अनुवादक दो संस्कृति, दो भाषा और दो परिवेशों में लिखता है। एक अनुवादक को दोनों भाषा, संस्कृति और परिवेशों का ज्ञान होना आवश्यक है। वर्षा जी का ट्रांसलेशन की दुनिया में ये पहला कदम रहा है, तो मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ये कदम उनका कैसा रहा है, और क्या उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली या उन्हें लेने की आवश्यकता हुई इस दौरान, क्योंकि उनकी बातों से लगता है कि वो पहले से ट्रांसलेटर नहीं थी। तो इस बारे में मैं इनसे पूछना चाहूंगी। जी, ट्रांसलेटर मतलब ये मेरी पहली पब्लिश्ड बुक है, लेकिन उस दौर में 20-21 के दौर में मैंने और भी 2-3 नॉवेलास ट्रांसलेट की जी, लेकिन वो अभी छपी नहीं है क्योंकि शायद नॉवेलास का उतना मार्केट नहीं है। तो जो छपती है वो एक संयोग भी होता है, और वो ये भी होता है कि उस समय मार्केट क्या सोचता है कि क्या पब्लिश होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप जो भी ट्रांसलेट करते हो, लेकिन हाँ, ये मेरी शुरुआती कदम जरूर है। और दूसरा क्या सवाल था? मेरा ये सवाल था कि क्या आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ी? तो मैंने अनुवाद करते समय तो ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन जब मैंने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कर दिया और मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तब मुझे जरूर महसूस हुआ कि जितने भी लोग छपे हैं वो सब एकेडमिक्स हैं और उनके पास लिटरेचर्स में डिग्री है जो मेरे पास नहीं है। तो फिर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में एक ऑनलाइन ट्रांसलेशन का कोर्स है, तेजस्विनी निरंजना जो कि खुद एक बहुत अच्छी ट्रांसलेटर है, वो उसकी डायरेक्टर है। तो मैंने उस कोर्स को ज्वाइन किया ताकि तो क्योंकि मुझे ये लगता था कि ट्रांसलेशन थ्योरी में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जैसे कि हम पोस्ट कॉलोनियल सब्जेक्ट्स हैं, हम सब पोस्ट कॉलोनियल्स हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहती है कि ट्रांसलेशन किस प्रकार से होना चाहिए। हमें लाइक वाइट पावर्स को वी आर नॉट सपोज्ड टू बी slavish to them. Our English should be in a particular way. Like English should reflect our cultural reality. It should not be the British English. Achha. So as you may have seen that I'm using a very different kind of English.
here in this book. It's not the British English. No, it is not. Yeah. It is very close to the art, I would say. So, as post-colonial subjects, we have to decolonize ourselves, and decolonization का जो actual concrete work होता है, that starts with language. You own your English. This English is not British English. This English is not what Shakespeare spoke. No, this is our English. It's our English. It's our English. Yeah. So ये जो अंग्रेजी को बरतने के मॉडिफिकेशन है, भाषा को तोड़ मरोड़ के आप किस तरह से अपनी बना रहे हैं, तो वो थोड़ी सी जो मेरे को कॉन्टेक्स्ट है वो मेरे को एकेडमिक चॉइस से जरूर मिली, पर वो मैंने बाद में किया। अच्छा पर ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने उसको कर लिया। हाँ, कर लिया तो जैसे आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया और ज्यादा। एब्सोल्युटली। आपको ट्रांसलेशन के समय कुछ दिक्कतें तो आई होंगी, आई एम श्योर। तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? और एक और चीज पूछना चाहूंगी कि ट्रांसलेशन करते समय एक अनुवादक का एक लेखक के साथ किस तरह का रिश्ता होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप उन्हीं की किताब को ट्रांसलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें ही आपको वो आजादी भी देनी है कि आप किस हद तक कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी, तो जो दिक्कतें हैं वो सभी अनुवादों में उसी प्रकार की आती हैं कि हमारे मुहावरे, हमारी बोलियां, हमारी इसमें भोजपुरी भाषा बहुत है, मैथिल है, और उनकी एक अलग ही तरह की पंजेंसी होती है, उसका अलग ही पंच होता है। जैसे इसमें एक स्लोगन आता है, क्या BA पास करेंगे, लालू VP पास करेंगे। अब लालू VP पास करेंगे का आप ट्रांसलेशन करते बैम्बू और समथिंग, it doesn't work. So you also have to keep the slogan, you also have to keep the punchline, and you also have to like make it into a slogan, not into a sentence. So I have translated it, BA we will do, Lalu VP we will screw, because bamboo has that screw visualization. So you have to be inventive, you have to, and it's like जैसे मैं वर्जिश की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि ऐसे पीरियड्स में जब आपका लेखन नहीं हो रहा है या किसी तरह से आप ब्लॉक फील कर रहे हैं, तो उस समय अनुवाद एक बहुत अच्छी वर्जिश बन जाता है, क्योंकि उसमें आपके पास टेक्स्ट ऑलरेडी है लेकिन आप भाषा के साथ खेल रहे हो, एंड इट इज सो प्लेफुल, एंड द ऑथर इज देयर, एंड you are constantly in communication. Like I would translate a couple of chapters and I would send it to Rakesh ji, and then he would say कि नहीं मुझे मजा नहीं आ रहा है, इसमें तो आपने ठीक से नहीं उतारा है जो मैं कहना चाह रहा था। कई बार हमारी अनबन भी होती है, मुझे लगता है कि मैंने तो इतनी मेहनत की और तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि ये ठीक नहीं है। So इस तरह से, but yeah, it is good, and the most important part, because like I said that there are some of my translations which are not completed, which have not been published, and that is because the author और translator में जो एक faith होना चाहिए या एक mutual trust होना चाहिए, जब वो work नहीं करता तो फिर then you also lose steam. In the sense कि because it's a very laborious process, it requires engaging, like जैसे हम सब यहाँ पे पाठक हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, translation I would say is the ultimate level of love for a book, कि you love it so much that you decided कि you will spend 6-7 months translating. So true. You are dealing with every single word. So when the author does not trust you or say, or he starts saying कि नहीं अभी तो इतने 1 साल हो गया ये तो publish नहीं हुई, then it doesn't work, because the author has written the book, it is complete, it is published, but the translator is also a curator. मुझे पब्लिशर को बताना है कि ये किताब क्यों अच्छी है, ये क्यों बिकेगी, और इससे पहले इसके जैसी कितनी किताबें आ चुकी हैं, इसके बाद और क्या मार्केट में सीन है. So I'm also curating the book. If the author is not trusting me, then I can't, go on. So true. I would say जैसे आपने इंग्लिश जो लोग इंग्लिश किताबें पढ़ते हैं उनके लिए आप ही तो एक जरिया है उनकी राकेश जी की किताब को सब तक पहुंचाने के लिए.
ये किताब, इस किताब का बैकग्राउंड पॉलिटिकल दिखाई देता है मुझे। आपको ऐसी किताबें पसंद हैं? जैसे मैंने कहा था कि मुझे हर तरह की किताबें पसंद हैं, लेकिन जैसे जैसे मतलब मैं अगाथा क्रिस्टी भी पढ़ती हूँ, पीजी वुडहाउस भी पढ़ती हूँ, एलिन ब्रिटन भी मैंने पढ़ी, और तमाम तरह की मैं हर कोई किताब पढ़ सकती हूँ। लेकिन जैसा कि प्रेमचंद ने कहा कि जब एक ऐसा वक्त आता है जब हम अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लिटरेचर या फिक्शन हमें कुछ ऐसा दे जो हमें अपनी इमीडिएट रियलिटी में नहीं मिल रहा है। हमें सांस लेने का कोई मौका दे, हमारी सच्चाई आगे, हमारी सामाजिक सच्चाई आगे रखने का कोई कॉन्टेक्स्ट दे हमें। और इस तरह की फिर बुक्स पे अपने आप ही झुकाव अपनी तरफ ऑटोमेटिक लेती है वैसी किताबें आपको। यस, सो व्हाटएवर इज, आई थिंक जैसे आप नेटफ्लिक्स सीरीज भी देखते हैं जी, तो अगर कुछ बात सच्ची दिख रही है तो आपका अपने आप यू वांट टू एंगेज विद, एंड इफ इट्स समथिंग इज entirely fake and just nonsense, then you don't want to engage with it. Same with books. So true. किन शब्दों की ट्रांसलेशन में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा या बहुत रिसर्च करनी पड़ी? कहीं ऐसा आपके साथ हुआ? हाँ, इसमें काफी सारी रामायण की चौपाइयाँ हैं और मैथिल के काफी सारी कहावतें हैं, तो उसमें ऑथर से मीनिंग तो पता चल जाता है, लेकिन उसको उस तरह के पोएटिक फॉर्म में लाना, उसमें वो मल्टीपल रिविजन्स के बाद ही हो पाता है। बहुत मेहनत हो जाती है, एक ट्रांसलेटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर वो मैं कहती हूँ कि वो इसलिए अच्छा है, जैसे आप कोई 20 किलोमीटर कोई मैराथन दौड़ता है इसलिए क्योंकि उसको मजा आता है, तो जब तक आपको मजा नहीं आता आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आई थिंक हम लोग सब जरूर कभी न कभी इंस्पायर होंगे वर्षा जी को सुनते हुए कि शायद हम भी कुछ ट्रांसलेशन कभी करें, और आई थिंक एज मदर्स होते हुए हम तो बहुत कुछ ट्रांसलेट कर ही रहे हैं। आज के समय में नहीं, मुझे मदर क्या, मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तानी होने की वजह से आप कॉन्स्टेंटली यू आर लिविंग इन ट्रांसलेशन। आई मीन सलमान रश्दी का बहुत फेमस कोट है कि वी आर ऑल मेन इन ट्रांसलेशन और women in translation, बिकॉज आप जाइए, आप सब्जी वाले से बात कीजिए, आप जाके मतलब कहीं पे 4-5 महीने तो बर्फ नहीं पड़ती है, कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेशन में ही रहते हैं। और हमारे तो बचपन से वो जो गूगू आ रहा कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेट पढ़ना चाहूंगी। ना लुटने का डर, ना पिटने का गम, जैसा था मेरा बाप वैसे निकले हम। Beatings care not, nor lootings hurt. Tough like my old man, I have turned. बप्पा एक मैया चार, आशिकवा घूमे बीच बाजार। Father one, mother's four, आशिकवा wanders door to door. आपने देखा वर्षा जी ने किस तरीके से इन कपलेट्स को ट्रांसलेट किया है। आपने हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आप कैसे जस्टिफाई कर पाती हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन तो बहुत ही खूबसूरत है। किस तरीके से आपने इनको पिरोया है, तो इसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी? आप उसको रीड अलाउड करके देखते, जैसे मैं अभी पढ़ रही थी जी, तो भाषा में एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब आप रीड अलाउड करोगे, अगर आपने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो कि बहुत वुडन है जी, जो बहुत पेडोल है, तो आपको रीड अलाउड में पता चल जाएगा। अच्छा, और जब आपके वर्ड्स सही होंगे, तो जब आप उनको रीड अलाउड करोगे, तो जो एक्सप्रेशन हिंदी में आ रहा था वो आपके सेंटेंसेस में अंग्रेजी में भी आएगा। आप इसको बहुत इजी, हम लोग के लिए बहुत इजी साउंड करवा रही हैं। आई एम श्योर इतना इजी नहीं है जैसे वर्षा जी कह रही हैं कि हम उसे पढ़ेंगे, और आई थिंक सुनने की बात है। हाँ, मतलब पढ़ने की बात नहीं, नहीं मेरे मतलब में आपको लगना चाहिए कि ये हिंदी का ही बोल रहे हैं। अगर वो मुझे लगता है आपके जैसा सेंस हो तो जरूर जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं और भी आपसे कुछ पूछना चाहूंगी।
कुछ शब्दों का तो आपने ऐसा ही प्रयोग किया है। उसमें एक शब्द था जो मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, ससुरा। और इसी तरीके से कुछ शब्द ऐसे भी थे, दाई अंदादी, उनका तो खैर आपने लिखा था बिच आंटी। बट जो वर्ड्स आपने ऐसा यूज किया, उसका कोई कारण था या ट्रांसलेशन का कोई स्कोप नहीं था? नहीं, जैसे ससुरा है तो उसके साथ मैंने रास्कल भी लिखा। जी जी। तो ये इम्प्लाई करने के लिए कि ये रास्कल तो है, लेकिन ये इंडियन वाला रास्कल है। तो आप वो कर सकते हैं, आप भाषा को थोड़ा इंग्लिश भाषा को एक्सपैंड कर रहे हैं। मतलब जैसे आज बाजार, जंगल, इस तरह के शब्द इंग्लिश हैं, लेकिन किसी जमाने में नहीं थे, तो वो इसी ट्रांसलेशन के थ्रू वो भाषा में आए। तो हो सकता है कल ससुर भी आ जाए। Because I feel it's such a colorful abuse. It is a very colorful abuse. आप एक बहुत सफल राइटर रही हैं, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, आज भी लिखती हैं। क्या आपके मुताबिक एक ट्रांसलेटर को अच्छा लेखक भी होना चाहिए? मुझे लगता है कि ट्रांसलेटर को अच्छा लेखक होना चाहिए, और ट्रांसलेटर होने से आप और अच्छे लेखक बनते हैं। इट्स अ टू वे, लाइक आई सेड, रियाज, ट्रांसलेशन इज रियाज, सो इट विल मेक यू अ गुड राइटर, इट विल हेल्प यू कल्टिवेट एन ईयर फॉर लैंग्वेज, भाषा। क्योंकि जो साहित्यिक भाषा होती है वो आपके कार्यालय वाली और ऐसी जो ध्रुव भाषा है जो इसको समझ ना आए, वैसी नहीं है। साहित्य का या सिनेमा का जो भाषा होना चाहिए वो आपको लपक के ग्रैब करके आपके अंदर इमोशन लाना चाहिए। बहुत सही कह रही है ना? तो वो इमोशन laden भाषा, that language full of expression, that can be cultivated by practicing translation, and of course to translate decently. I will not say perfectly, because translation is an art of failure. There's no perfect translation. आप कितना भी perfect करें, कोई और करेगा तो थोड़ा कुछ और करेगा। तो आपकी ग्रामर पे, I would say अंग्रेजी की ग्रामर पे, अंग्रेजी के वर्ब्स का वजन, अंग्रेजी के नाउन्स का वेट आपको समझ आना चाहिए। जैसे आप वॉक लें, वॉक इज एम्बल, इट्स स्लाउच, इट्स स्ट्रोलिंग, इट्स रनिंग, इट्स स्ट्राइडिंग। नाउ इस जगह पे कौन सा वर्ब बैठेगा ये आपको समझ होनी चाहिए। तो इतनी अंग्रेजी के ऊपर आपकी होल्ड होनी चाहिए, और ट्रांसलेशन करेंगे तो आपकी और इम्प्रूव होगी। जी मैम, ये बताएंगे क्या आपकी क्रिएटिविटी को ट्रांसलेशन सांस लेने देती है? ओह यस, that's the only thing. I told you that in 21, when I started translating, I was in a bad phase of my life, not just because of COVID, because my mother passed during the first wave in 2020. So, and then sometimes when you lose a good friend also, I also broke off with one of my long-term friends, and that is also like a pain. It's like a pain in the heart, and it's very heart-wrenching. हाँ, मतलब it's not like डिवोर्स की आप बात कर सकते हैं, मदर की डेथ की आप लोगों से बात कर सकते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई होगी आप कोई नहीं समझता। So that pain, I think translation, and because it focuses your mind. जी. So anything which it is for me, it's like a meditation. It just कि अच्छा मुझे आज 10 पेज करने हैं, I have to sit with this text, and you are lost for 4-5 hours, one after the other. I think it's healing. It's healing. It's so wonderful to know that, because that is also a different aspect to translation. Yeah, definitely. मैम, आपने इतने आर्टिकल्स लिखे हैं, आपने कभी नॉवल लिखने का सोचा? I am working for 10 years. I've been working, and if translation is an art of failure, novel is also, because I read so many good books and I feel that what I write is not matching up. So I'm constantly working on it. Generally, मैम, आप ट्रांसलेशन के बारे में आप क्या, आपकी सोच क्या कह रही है?
हिंदी लेखन में आपको क्या लगता है ट्रांसलेशन की कितनी आवश्यकता है? जैसे आपने कहा कि आपकी दोस्त मलयाली रही, तो उसकी वजह से आपने उन्हें 10 पेज लिख करके दिया। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ तो बहुत सारे हिंदी भाषी तो नहीं है, तो उस हिसाब से हिंदी की ट्रांसलेशन एक मतलब या इंग्लिश में होनी चाहिए आपके हिसाब से? बहुत। और क्योंकि काफी लिटरेचर ऐसा है जो बहुत दिल के करीब है, और इस तरीके से हमें भी पता लगेगा अलग भाषाओं के बारे में। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप अपनी अपनी जो सबसे किताबें आपके दिल के करीब हैं, आपको एक ट्राई तो लेना ही चाहिए ट्रांसलेट करने का। बिकॉज हिंदी को मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि इतनी समृद्ध है और इतनी सारी चीजें हैं जो कि अंग्रेजी में जो ओरिजिनली लिखी हुई बुक्स है, क्योंकि वो एक सर्टेन क्लास और एक सर्टेन बैकग्राउंड के लोग ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी की जो किताबें लिखते हैं वो इतने ज्यादा लाइफ एक्सपीरियंसेस, इतनी ज्यादा डिटेल्स होती हैं उन बुक्स में, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी जरूरत है और इंग्लिश भी उससे समृद्ध होगी। तो ट्रांसलेशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, नॉट जस्ट फ्रॉम हिंदी बट फ्रॉम एवरी इंडियन लैंग्वेज। एब्सोल्युटली। मैम, मैंने ज्यादातर देखा है ट्रांसलेटर्स को राइटर के बराबर ख्याति प्राप्त कम होती है। आज के समय के लिए आप क्या कहना चाहोगे, पहले से और आज में क्या फर्क आ चुका है? कई बार आपका जैसे इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है 1990 आरामगंज नॉवल ट्रांसलेटेड बाय वर्षा तिवारी, दिस इज रिटन, ये इतनी अच्छी से यहाँ लिखा है। पर पहले के जमाने में शायद ट्रांसलेटर्स के नाम कम लिखे जाते थे या उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। आज के समय में आप एक ट्रांसलेटर होते हुए क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वो डेजी रॉकवेल को बुकर प्राइज मिलने के बाद आफ्टर टूम्ब ऑफ सैंड things have really changed with Arnav Sinha, Daisy Rockwell, and these people are really like promoting translation on multiple levels. They have started so many competitions and prizes and all. So, and then there's JCB Prize for Literature, which is taking in translations published in India. So, yes. So, translations have a bright future, and I think today translation is a bona fide literary activity. आप दूसरे ट्रांसलेटर से और भी कुछ कहना चाहेंगे और उनके लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मैं एक ट्रांसलेटर्स कलेक्टिव की भी पार्ट हूँ, एक गुलमोहर मैगजीन, जिसमें बहुत सारे यंग ट्रांसलेटर्स जो कि पहले अभी कदम ले रहे हैं ट्रांसलेशन में। I tell them that first you read, because the first step to translation is reading, and reading with all your heart. So if you're not a reader, if you think कि अच्छा चलो मुझे ट्रांसलेशन करना, let me pick up Premchand or let me pick up something that is already the whole world knows, you pick it up and start translating. You should know that this writer is not known. The world needs to read him. So that is the impulse. That kind of love has to come first. Then the next step is translation. Don't translate Premchand. Premchand has been translated to death. Don't translate Manto. Manto has been translated to death. Pick up something else. Pick up newer contemporary writers, because they also want to be known to the world. They also need to be read. So I think translation का पहला स्टेप पढ़ो, उसके बगैर ट्रांसलेशन मत करो। कितनी सही बात है। मैम, आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? नहीं, मैं प्रेजेंट में जीना पसंद करती हूँ। I am not looking at 5 years ahead. I think it's more important to live the present moment fully than 5 years will take care of themselves. I think after COVID we follow what that says. Yes. आपने अपने लेटेस्ट वर्क के बारे में बताया ही है, आप और भी कुछ उसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगी जो आप कुछ लेटेस्ट कर रहे हैं? क्या आप कोई और भी ट्रांसलेशन कर रही हैं? हाँ, मैं ट्रांसलेशन भी कर रही हूँ और मैं लेखन भी कर रही हूँ, लेकिन आई एम अ बिट अंधविश्वासी। मुझे लगता है कि काम दुनिया में आने से पहले उसके बारे में बहुत बोलना नहीं चाहिए।
because one doesn't know. You know, so many projects you start, they don't, really materialize. So better not to talk about things which have not reached that stage. मुझे महसूस हो रहा है मैं वाकई हिंदुस्तान में हूँ और हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदुस्तानी के साथ ही बात कर रही हूँ। और उसमें इतना आनंद है कि हम सब बैठ के अपनी हिंदी, अपनी अंग्रेजी और दोनों को मिला के, जुड़ा के, तोड़ फोड़ के बात कर सकते हैं। It's perfectly fine and that is what translation is. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने कितना कुछ साझा किया हम सबके साथ। अब मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी कि अगर वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे मैम से, कोशिश करें कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो, सिंपल हो। किसी को कुछ मैम से पूछना चाहेंगे? I just want to ask one thing, like regarding translation. Actually, translation, I feel there has to be, it should pick up the nerve of the content. Because my experience, like I wanted to read Gitanjali, and Gitanjali is written in Bangla. So I had tried so many books, like as a translated books definitely, because either in Hindi or English. But still I felt that I will be able to relate more in Hindi, कि आप हिंदी में उसका फील ले सकते हो जो है. But again, I had tried 2-3 books in that. But till date, whenever I read it, I feel that I'm not able to get the actual essence of what, like, the Guruji is trying to convey in that. So that is how at times, maybe it depends a lot on the translator, as you said, that you need that type of expertise or maybe you need that type of training. And again, you need to have they should have the nerve of the brain of the author, the original author, what the author is trying to convey to you. So with me, like, I've just tried for one book because I was really wanting to read that book as a Nobel Prize book. So, but the thing is, I just found that I couldn't get, till date, I'm not able to get the right translated book that could really give me the feel. Like if we read Premchand or Sharad, they are like translated. Premchand is in Hindi itself. But even a few books of Sharad, what I've read in Hindi, I could get that feel of it. But till date, I have not got the feel of Gitanjali anywhere in any of the books. So that is why I was like, yeah, that was like regarding the Hindi translation. Even if in English, I feel if we read our books, like the epics or anything, I always feel that it is to be read in Hindi rather than English. Because आप connect करते हैं, because the society we are in, the part of the country we are in, तो हम लोग हिंदी से ज़्यादा अच्छे से relate करते हैं. उसका मर्म आपके मन में समझ आता है. इंग्लिश में आपको फील नहीं ले पाते. Even if you read भगवद गीता, इंग्लिश में आपको, I don't feel personally, I can't have that feel of Ramayana and Gita or any text in Hindi, in English. आप हिंदी से एकदम connect हो जाते हो उसमें. So, but it a lot depends upon the translator, I feel, when the books are translated. जी, तो आप जो बात कर रही है ना, रामायण की, भगवद गीता की, गीतांजलि की, ये पोइट्री है, वर्स है. Yes. Now, if prose translation is difficult, poetry translation is even more tough because उसमें आप शब्दों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उस पे राइम का, मीटर का और फिर साइलेंसेस का, क्योंकि पोएट्री में आप गालिब को पढ़ेंगे. अगर ट्रांसलेशन में हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे कम निकले, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले. अगर आप उसका इंग्लिश मीनिंग पढ़ेंगे, इट डजंट हैव एनी इम्पैक्ट, क्योंकि वो उसमें राइम है और जो उर्दू के लफ्ज होते हैं उसी से इम्पैक्ट आता है कि वो एक के साथ दूसरा लफ्ज कौन सा रखा है. इसी तरह बांग्ला में भी ऐसा है. बांग्ला में मतलब ओनोमेटोपिक जिनको बोलते हैं ना, साउंड वर्ड्स इतने हैं जो रविंद्र संगीत है, इसलिए उसे गाया जाता है. तो आप मीनिंग ट्रांसलेट, अब ये डिपेंड करता है कि आप जो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी ने सिर्फ मीनिंग ट्रांसलेट किया हो और किसी ने सिर्फ उसका तुकबंदी किया हो, तो वो दोनों तो पोएट्री ट्रांसलेशन अगर आपको अच्छा पढ़ना है तो आप अरविंद कृष्ण मल्होत्रा के कबीर पढ़िए,
उन्होंने जो कबीर का ट्रांसलेशन किया है, और वो एक तरह से ट्रांसक्रिएशन हो गया है, मतलब उन्होंने कबीर के ओरिजिनल दोहों से इंस्पायर होके अपने अंग्रेजी में दोहे बनाए। तो उसके लिए बहुत हाई लेवल की क्रिएटिविटी चाहिए। अब मैंने हिंदी में तो रविंद्र संगीत नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ अच्छे इंग्लिश में पोएट्री ट्रांसलेशंस हैं, मैं उनका आपको बाद में शेयर कर सकती हूँ, बट it is far more complex than prose translation. So that is why the person who has read original or he has heard original will always feel a little let down. And like I said, translation is always an art of failure. कि कुछ ना कुछ हमेशा छूट जाता है, और जो भाषा जानता है उसे लगता है कि अरे ये तो नहीं हुआ। लेकिन इसी से भाषा समृद्ध भी होती है, क्योंकि अभी जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केस को हम सब लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में, हम पोर्चुगीज नहीं जानते, लेकिन हम कैसे जानते हैं? नो, ओनली थ्रू ट्रांसलेशन। सो it depends upon the creativity of the translator. Absolutely. Poetry requires far more. Has there been any character, emotion, or any part of translation which was very difficult for you to do? And what was that, and what was your difficulty in doing so? Like I said, सबसे ज़्यादा जो मुहावरे हैं और गालियाँ हैं, दो चीज़। क्योंकि आपको पता है कि जो गाली है उसका ट्रांसलेशन करके उसका इम्पैक्ट चला गया है, और मुहावरों में भी ऐसा है कि आप पूरा इम्पैक्ट नहीं ला सकते, तो कई बार आपको कुछ और अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है, या कई बार आप छोड़ देते हो। तो ये चीजें तो सबसे ज्यादा ही जैसे एक एग्जाम्पल है, मुहावरा भी नहीं है, एक बोलने का ढंग है, डायलेक्ट है या बोलने का ढंग है। जैसे बिहार में बोलते हैं कि क्या मिस्टर जी आजकल आप काहे इतना ठंडा पड़वा रहे हैं। अब इसको ट्रांसलेट मैंने किया है, लेकिन आई वाज नॉट हैप्पी। So sometimes the very tone of speaking, अब आप तो समझ लीजिए कि देश तो समझ लीजिए दुबई, अब दुबई I cannot translate, I can make it as sunken, it as sound or something, but it is untranslatable. So such things happen. How many times does an author tell you not to translate certain parts of the original script and leave it just like that? Author doesn't tell. Author presumes that you will translate everything, but you yourself make a choice because by putting or leaving certain words from Hindi or Bhojpuri, the impact is enhanced. The expression of the language is enhanced. So you make a, जैसे गार्निशिंग करते हैं ना खाने के ऊपर, तो उसमें हम थोड़ी हिंदी और भोजपुरी छोड़ देते हैं। Thank you so much. We have AI and we have ChatGPT, we have Google Translate. So even for us, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, घूमते हैं, जो भी करते हैं, तो सीधा हम Google Translate पे डाल के इसका क्या मीनिंग है वो हम देखते हैं, और कभी कभार ठीक आता है, पर कभी कभार काफी मिस हो जाता है जो एक्चुअल मीनिंग होता है उससे। So as a translator, is that like a threat to translators, or do you also take help from that, or what is the difference between a Google Translate and जब ट्रांसलेटर को थोड़ा कॉमिक रिलीफ चाहिए होता है, तो हम AI से पूछते हैं और फिर हंसते हैं। I don't think as of now AI has developed the literary intelligence. Maybe after 10 years, I don't know. As of now, it hasn't. ChatGPT definitely has developed a good language. No, it hasn't. आप उसका कोई भी original आप देखिएगा, आपको हंसी आएगी। Basically, I was thinking and contemplating whether I should ask this kind of a question or not. The reality is, when we talk and discuss about big books, and I belong to a field where I'm dealing with very small children,
The threat is to inculcate the love for reading or the love for, just opening a book also. Believe me, that's a threat. It's too difficult. And from your initial discussion that you made here, that your mother used to write and read, and from there you picked up this habit. Not right. She used to read a lot. So as a child, maybe you were observing her and you found a little, interest, and it just got inculcated from your childhood. Now this is the challenge, because all of us as mothers now are working, the time limit is there, hardly we get time to even pick up a newspaper and read on a regular basis. So any tip that you can give me as an educationist that, I can try put it in the children with whom we are dealing to make them, read or maybe inculcate some love to find out the facts behind, because it is reducing the good authors, the good avid readers, it is reducing day by day. So how can we keep this tradition, especially in our country? How can we raise it? मुझे तो लगता है, देखिए मैं 70 के दशक में पली बड़ी, तब ना टीवी हुआ करता था, कृषि दर्शन आता था शायद सिर्फ पड़ोसी के टीवी। डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, बोर्डम बेसहारा थी। 2-2 महीने की गर्मी की छुट्टियां हो जाती थी और कुछ नहीं था, बस एक लाइब्रेरी थी। तो हम मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी चीज को बोलो कि ये एजुकेशनल है, अच्छा है, तो बच्चे कतई नहीं करेंगे। उनको कोई अपने अंदर से कुछ ललक होनी चाहिए, जैसे हमें ललक थी क्योंकि इतना मॉडर्न था, दैट वाज द ओनली रिलीज, दैट वाज द ओनली एक्सेस टू अनदर वर्ल्ड। तो आजकल की दुनिया में क्या है कि there's constant buffet of activities, do this, there's mobile, there's iPad, there's this, तो कहाँ से बच्चे को बोलना होगा? तो बच्चे के लिए इतनी प्लान्ड एक्टिविटीज होती है, उसका मन हर एक, आप उसको बैले करवाओ उससे बोर हो जाते हैं, कराटे करवाओ उससे बोर हो जाते हैं। आप देखेंगे आजकल के बच्चे 1-2 महीने में हर चीज से बोर हो जाते हैं उनको, और फिर वो देखते हैं कि उनके पीयर्स क्या कर रहे हैं, then they want to do that. So I feel कि some kind of a purposeless accessibility in which somebody is enjoying and they are seeing that person enjoy, तो उनको लगता है कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये एंजॉय कर रहा है। तो हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है बड़े बच्चों के लिए तो एक आइडिया मुझे आज यहाँ मिला है, and I'm going to really implement it. The book club is already existing, but the irony is the good writers are not taking part in that. So basically what we are doing right now is we are putting them to training and writing. I think before even that, the right step is to get them to such good authors who can talk about their books, who can talk about their emotions, expressions. This, I think, definitely, writing is a very good idea. That can be step 2 after listening to the authors, their experiences. That takes their interest to start writing a little. And translation, I think, is a beautiful idea because it seems maybe initially easy, translate ही तो करना है, but it takes you deep inside the content. एक ही कृष्णा सूक्ति का sentence दे दीजिए, that can be translated in 50 different ways. Exactly. So that itself is a revelation. You don't have to translate pages. You just give 2 lines by Kali, 2 lines by Krishna Sukti. Then be busy for it. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सो मच वर्षा जी और नताशा जी, आपका मन तो नहीं कर रहा बातों का सिलसिला खत्म करने का, बस शो मस्ट गो ऑन। अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी मैडम निधि सिंह जी का, आप प्लीज यहाँ आइए और वर्षा जी और नताशा जी को एक छोटा सा प्रभा खेतान की ओर से मोमेंट में बताएं। प्रभा खेतान का ये छोटा सा प्रयास है अंतर्राज्य आर्ट को प्रमोट करने का। सबसे अलविदा लेने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सहयोगी ITC वर्षा जी, आपका एक बार फिर से थैंक यू। आपने अपनी व्यस्त सूची से हम लोग के लिए वक्त निकाला और हम सब लोगों को यहाँ पे अपनी बातों से मोहित रखा। आप सब, मैं अपने आप को करना चाहिए एज ए ट्रांसलेटर भी पाठक ही समझती है, तो इतने सारे पाठकों के बीच में आना और उन सबसे
दिल से बातचीत करना बहुत अच्छा लगा और आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड एंड आई फेल्ट वेरी चेरिश्ड। थैंक यू सो मच।